Good morning, student. Today we talk about Schwarz theorem. The statement is given here: if fxy is any real valued function on domain D, subset of R2, and AB is any point in D such that first fx is exist in neighborhood of AB, and second fxy is continuous on at AB, then fxy AB exists fyx AB exists, and fyx AB is equal to fxy AB. So clearly in this theorems, given that f is a real valued function on domain D, subset of R2, दिस है 2-dimensional स्पेस कि डोमेन में f कैसा है हमारा, एफ एक्स वाई क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। कोई ए बी पॉइंट है डोमेन डी पे, इस प्रकार है कि एफ एक्स क्या है, एग्जिस्ट करता हो इसके नेबरहुड में, ए बी के नेबरहुड पर, और दूसरा एफ एक्स वाई कंटिन्यूस हो ए बी पर, तब एफ वाई एक्स एक्जिस्ट का ए बी पर एग्जिस्ट होगा और एफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा। ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अंडर द गिवन condition, first and second, we can say for any point xy in neighborhood of AB fx xy fy xy and fxy xy are exist। ओके, तो क्लियर है कि हमें दिया एफ एक्स एग्जिस्ट है नेबरहुड ऑफ ए बी में और एफ एक्स वाई कंटिन्यूस ए बी पर, तो हम कह सकते हैं कि इसके यदि ए बी का कोई नेबरहुड लेते हैं एक्स वाई, नेबरहुड में कोई एलिमेंट एक्स वाई लेते हैं, तो उस पॉइंट पर एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स वाई ये तीनों क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। नाउ लेट ए बी या लेट a plus h and b plus k be any point on neighborhood of neighborhood of AB, okay, AB, then
we consider a function phi of hk is equal to f of a plus h and b plus k minus f of a b plus k minus f of a plus h b m प्लस एफ ऑफ ए बी। तो ये टू वैल्यूड फंक्शन है। अब इस टू वैल्यूड फंक्शन को वन वेरिएबल में चेंज करने के लिए हमने एक फंक्शन और कंसिडर किया एंड फॉर ये टू वेरिएबल फंक्शन है, इसको वन वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन और कंसिडर किया जी वाई। जी वाई, व्हाट इज जी वाई? जी वाई हियर एफ ऑफ ए प्लस एच वाई and minus f of a y because y is a fix and ये चूँकि f जो है हमारा टू वेरिएबल फंक्शन है और g हमारा वन वेरिएबल, तो इस ये जो ऊपर जो f ऑफ h k है ये टू वेरिएबल फंक्शन बाय विद द हेल्प ऑफ g ये क्या होगा, वन वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सच दैट देन क्लियरली देन when y is equal to b, gb is equal to f of a plus h b minus f of ab, and y equal to b plus k, then gb plus k is equal to f of a plus h b plus k minus f of a b plus k। ओके, क्या किया इसमें हमने, इसमें y के प्लेस में एक बार b रख दिया, एक बार b प्लस k रख दिया, तो ये फंक्शन मिल जाएगा। सच दैट इस प्रकार की दी सच दैट एज फाई ऑफ एच के, व्हाट इज द वैल्यू हियर, दी एफ ऑफ ए प्लस एच बी एंड माइनस एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी, दिस वैल्यू इज हियर एंड एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ए बी प्लस के। देखिए दिस वैल्यू ऑफ दिस पुटअप कर दें तो क्या आएगी, जी बी प्लस के माइनस जी बी। ओके, यहाँ लिख दें इस कंडीशन इज 1 इज 2 इज 3 एंड दिस इज 4 दे फ्रॉम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वी हैव ठीक है, we have okay the phi of g b plus k minus g b। okay, since fy is exist at neighborhood of ab, हमने ऊपर लिखा है fy is exist in xy and xy is an element of arbitrary element of a neighborhood of AB, then clearly fy exist at neighborhood of AB, then clearly then the fy, the g is a function of f and fy exist, that means fy, that means f is a differentiable with respect to y, and that means g is that means g is differentiable on what is the variation here, b and b plus k, so b and b plus k। okay, then g is differentiable on b to b plus k, then so by Lagrange's या मीन वैल्यू थ्योरम जो लिखना हो, दैट्स अ मीन वैल्यू थ्योरम। what is the mean value theorem is g b plus k minus gb divide by b plus k minus b is equal to g dash c, and differentiable and b plus k is a variation of y, that means here is del upon del y, and g dash that means del upon del y g, and c, what is the c here, what is the c, because we take here c, so what is the c, and c belongs to what is the c here, so c, and c belongs to b to b plus k, b to b plus k। okay, so value here b to b plus k। okay, what is the c, we take a c here, b plus theta
b plus theta k, where theta between 0 to 1. If we take theta equal to 0, then c is equal to b, and we take theta equal to 1, then we have c equal to b plus k. Then clearly theta will lie between 0 to 1, that means clearly b plus theta k lie between to b to b plus k. Then in place of c, we take here b plus theta k. Okay, then do not take here c, we take here b plus theta k. Okay, एंड बी थीटा स्लैब में 0 to 1. क्लियर ये चीज़. यहाँ पे एक्चुअली जो हमारी जो डेफिनेशन है वो ये थी, जी बी प्लस के माइनस जी बी अपॉन बी प्लस के माइनस बी इज इक्वल टू जी डैश सी. व्हाट इज द सी? सी बिलोंग्स टू बी प्लस के. तो हमने सी के प्लेस में क्या ले लिया, हमने बी प्लस थीटा के ले लिया है. वाई? बिकॉज इफ़ यू टेक थीटा इज इक्वल टू 0, देन दिस वैल्यू सी इज इक्वल टू बी, एंड थीटा इक्वल टू 1, देन क्लियरली थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स बी प्लस के. अक्षर का वैल्यू, अगर थीटा का मान 0 से 1 के बीच में है तो बी प्लस थीटा के क्या होगा, बी से बी प्लस के बीच में होगा. तो ये क्लियर है. तो सी के प्लेस में हम बी प्लस थीटा के ले सकते हैं. तो हमने यहाँ पुट कर दिया. तो व्हाट इज द वैल्यू हियर, जी, इसको सॉर्ट आउट कर लो, बी प्लस के माइनस जी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी से बी कैंसिल, तो क्या आएगा के इंटू डेल अपॉन डेल वाई, एंड हियर जी बी प्लस थीटा के. And put this value in this form. Here equation number 5 and this number is 6. So from 5 and 6, from 5 and 6, from 5 and 6. What is a 5? 5 is a phi of hk. Phi of hk. The phi of hk is equal to g b plus k minus gb. And g b plus k minus g b is equal to k into del upon del y, g b plus theta k. So this value here, k into del upon del y, g b plus theta k. And what is a b plus theta k? B plus theta k is lie between to b to b plus k. And what is a theta? And theta is lie between to 0 to 1. Okay. What is the gy? Since gy is equal to f of a plus h y minus f of a. Why? Because this value is defined in equation number 2. The equation number 2 is this value here. Gy equal to f of a plus h y minus f of a y. Then clearly in place of y is here b plus theta k. Then put value here. Then we have phi of hk is equal to k into del upon del y. The value here f of a plus h y. What is the y? Y here b plus theta k, and minus f of a and b plus theta k. Okay, b plus theta k since ठीक है. Then b plus theta k, that means here, that means phi of hk is equal to k into अंदर ले जाओ उसको, तो क्या आएगा f of y f y, बिकॉज डेल अपॉन डेल वाई अप्लाई हेयर, दैट मीन्स f का पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y है ना. इसका मतलब ये है कि डेल अपॉन डेल वाई अप्लाई ऑन f, दैट मीन्स क्लियरली एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस थीटा के. ओके, ठीक है, इतना हो गया यहाँ पर. अब क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया. इक्वेशन नंबर क्या देते हैं इसको, 7 नंबर दे देते हैं. ओके, देन एंड वेयर थीटा लाई बिटवीन टू 0 to 1. ओके, इस 0 to 1. If we take 0 to 1, that means clearly b plus theta k lie between to b plus k. But if we take is less than equal sign, then clearly b plus theta k lie between to b plus k. If we take open interval here, then here is less than and less than equal, strictly less than. Okay. So now fxy is exist at on neighborhood of AB. Because fx is exist, then clearly here the fxy
fxy exists on neighborhood of AB, then clearly fxy is neighborhood of exist on neighborhood of AB. Then again by the mean value theorem, व्हाट इज अगेन क्या करते हैं, इस पर मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं, क्योंकि एक्स वाई तो हो गया, अभी बोल रहा है कि दोबारा एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं, क्योंकि एफ एक्स वाई एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ डिफेंसिबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आल्सो। ओके, तो उसको क्या करते हैं, डिफेंसिबल है, चूँकि एफ वाई जो होगा एस के वो ए टू ए प्लस एच पर क्या है, अवकलनीय है। ये सकते हो यहाँ पर कि एफ एक्स वाई एग्जिस्ट, दैट मीन्स एफ वाई इज डिफरेंशिएबल with respect to differentiable on a to a plus h. Then okay, the fxy exists on neighborhood of AB, then fy is differentiable on a to a plus h, then again by the mean value theorem. What is the mean value theorem? The fy a plus h b plus k minus f of a b plus is theta k here, theta k divide by what is the variation here, b plus theta k is fixed, a plus n and a, so clearly here we take a plus h minus a is equal to f dash dy here f dash c। तो व्हाट इज एफ डैश, तो एफ यहाँ पे क्या है, एफ वाई है, किसके लिए डिफरेंशिएबल है, ए टू ए प्लस एच है, मतलब एक्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो डेल अपन डेल एक्स आएगा। ठीक है, अंदर क्या आएगा, एफ वाई, आपकी देखते हैं किस पे बात हो रही है यहाँ पर, एफ वाई सी। अब सी यहाँ पे क्या होगा, देखो सी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी प्लस थीटा के तो कॉन्स्टेंट है ना। अब बात आती है इसकी, तो जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, ए से ए प्लस की वैल्यू लॉन्ग करेगा, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं ए प्लस थीटा वन एच ले लेता हूँ, थीटा वन एच ले लेते हैं। ठीक है, ए प्लस थीटा वन एच ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ लिखते हैं हम ए प्लस थीटा वन एच बिलोंग्स टू ए प्लस एच एंड थीटा वन लाई बिटवीन टू 0 to 1। ओके, क्लियरली जैसे हमने वहाँ पे लिया था, हमने बी प्लस थीटा के लिया था और हमने कहा था थीटा लाई करता 0-1 के बीच में, और बी प्लस थीटा क्या है हमारे पास, बी टू बी प्लस के पे बिलोंग करता था। वैसे यहाँ पे ए प्लस ए थीटा वन एच क्या होगा, ए टू ए प्लस एच बिलोंग बीच में लाई करेगा, और थीटा वन क्या होगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, देन अगेन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, देन सो नाउ देन एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा के माइनस एफ वाई ए बी प्लस थीटा के डिवाइड इज इक्वल टू, इज ए टू ए कैंसिल, एच मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो कितना जाएगा यहाँ पर, दी एच, और यहाँ जाएगा डेल अपॉन, अंदर ले जाओ उसको, तो कितना जाएगा, एफ एक्स ऑलरेडी है, एफ वाई ऑलरेडी ऑपरेट हुआ, तो क्या है एक्स वाई, ये कितना आ गया, ए प्लस थीटा वन एच एंड बी प्लस थीटा के, एंड वेयर theta lie between 0 to 1 and theta 1 lie between 0 to 1, and again a plus theta 1 lie between a to ah, a plus h and b plus theta k lie between b plus k. Okay, then now this values is equation number 8, equation number 6 from 7 and 8, from 7 and 8, this value put here, and we have phi of hk, is equal to, is k is also here and h is value here,
and this value is equal to this value here is f x y and a plus theta 1 h and b plus theta k, and where theta and theta 1 is lie between 0 to 1. ओके, इसको अलग लिखिएगा, मैंने साथ में लिख दिया है तो इसको चाहे तो अलग लिखें, थीटा एंड थीटा 1 लाई बिटवीन 0 to 1, अलग अलग करिएगा, है ना। हो सकता है आप भी ऐसी कॉपी कर दें, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है, ठीक है, ऐसा गलती मत करिएगा। देन ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 9 नंबर। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड 9, व्हाट इज द first equation is here. This equation we take here in place of phi hk, the f of a plus h b plus k minus f of a b plus k minus f of a plus h and b minus plus f of ab divide is equal to the hk is shifting here, the hk shifting here and this value, चलो लिख देते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी हम। the kh here and fxy is a plus theta 1h and b plus theta k. Okay, then apply the limit here, we taking the limit h tend to 0 and k tend to 0. Then apply here limit k tend to 0 and here is 1 by hk is 1 by k is here and 1 by h inside this k by h shift here, then divide by k by h divide by k by h, they divide by k into h, क्योंकि h के यहाँ पे लिखा हुआ शिफ्ट कर दो इस तरफ, तो क्या आएगा दिस पोर्शन डिवाइड बाय के एच। हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या करा, लिमिट के टेंड टू 0 और एच टेंड टू 0 हम अंदर ले जा रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड हियर एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, आई थिंक सो इतने समझदार तो आप हो कि पहले उसको यहाँ शिफ्ट करोगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करोगे तो के एच पहले बाहर होगा, फिर ए 1 के को बाहर कर दिया है तो ये क्या होगा, केवल एच को लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स चाहिए, तो पहले हम एक्स के लिए करेंगे देन वाई के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले एक्स में वेरिएशन देख रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे के ये से वाई पार्ट जो है फिक्स है, क्योंकि हम वाई क्योंकि पहले हम एक्स के लिए कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी है तो हमें वाई एक्स चाहिए, मतलब वाई एक्स मतलब कि एक्स पर वाई ऑपरेट करना है, तो पहले एक्स के लिए करेंगे, एक्स के लिए करना मतलब एक्स में वेरिएशन चाहिए हमको, तो हमने ए प्लस एच और यहाँ देखो ए लिया है, वाई फिक्स है, डिवाइड बाय एच आएगा, इसको अलग अलग कर लो, माइनस ऑफ इस पूरे डिवाइड में के डिवाइड इस पूरे पोर्शन के डिवाइड में के बाई एच है ना, तो 1/k तो बाहर कर दिया हमने, अब बचा एच, तो इसकी डिवाइड में एच और इसकी डिवाइड में भी एच आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाय एच एंड हेयर इज इक्वल टू लिमिट के टेंड टू 0 एच टेंड्स टू 0 is phi x y and this value here a प्लस लिख लीजिएगा यहाँ पर जो भी वैल्यू समझती है ना, ये पूरा क्या करना है, ये पूरा कॉपी कर देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ओके, जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ इसको। तो क्या आएगा देखो, पहला क्या आएगा, लिमिट k टेंड टू 0 1/k एंड अंदर हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ a प्लस h b plus k minus f of a b plus k divide by h minus f of a plus h b minus f of a b divide by h is equal to limit k tend to 0 limit h tends to 0 एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा 1h एंड बी प्लस थीटा के, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ कितना जाएगा देखो,
देन इम्प्लाइज कर दो लिमिट k टेन टू 0 and 1 upon k. Okay, this portion by the definition of differentiability, this value is equal to this whole value is equal to f x a b plus k, because here variation here y f x, because is variation here x. तो ये क्या है by the difference, ये क्या है the formula of partial differentiation with respect to x. okay, and minus again variation x में है तो यहाँ क्या आएगा एफ एक्स ए बी. okay, this value here limit k tend to 0, the f x y is a plus theta 1h, k tend to 0, that means we take here b only. then again इसको अरेंज कर लो तो लिमिट k tend to 0 एफ एक्स ए बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए बी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू, अप्लाई कर दो यहाँ पर तो क्या आएगा एफ एक्स वाई ए एंड बी. ओके, देन व्हाट इज द फॉर्म बाय द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ differentiability we have this value is equal to f is x, variation in y, तो क्या आएगा yx at ab is equal to fxy at ab is a formula of proof, is a Schwarz inequality. okay, hence proved. So I think so very simple and easy. If you any problems, so please ask again in classroom. okay, take care, good day, bye bye. Is dated is date here 2 Feb 2021. okay, good day, take care, bye bye.